So in the last lecture we studied some things. I would like to revise it. Structure of alkene we were studying. Okay. So occurrence in the plants which produce the alkenes. Okay, especially in the oils. Okay, they are called unsaturated. Means they have carbon to carbon double bond. Okay. So alkene. What is alkene? Alkene is homologous series of hydrocarbons. Means it is series of hydrocarbons. Okay, which contain carbon to carbon double bond. So you can see over here we have two carbons which are bonded to each other by the double bond. Okay, so this is ethene because of two carbon ether, and because of ene means alkene, so it is given ene at the end. Okay, ethene. So general formula for the alkene is CnH2n, and n means it can be any number starting from 1, 2, 3. Okay, so etc. So naming alkene, whenever we are naming alkene, so it ends with the ene. Okay, so as we know that there are two parts of the names. First part indicates that is called the prefix, indicates the number of the carbons. ठीक है, जैसे कि हम मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका till 10. Actually the syllabus in your syllabus is till 4, means till butane or butene, like this. Okay, so second part is just called suffix means which comes later. Okay, this, as we say, able and respectable and responsible, sorry, like this many are able. Okay, so that comes after. That's called homologous. Okay, that shows the homologous series. Okay, so homologous series is showing ene. So in this way we can name them. Okay, let me tell you some एग्जाम्पल्स ऑफ इट्स मालिकुलर फार्मूला ईथीन. ठीक है, तो अब ईथीन है तो उसमें क्या है जी, चलें इसको देख लेते हैं. ईथीन है तो ईथीन में CH2, इस स्ट्रक्चर फार्मूला CH2. ओके, फुल स्ट्रक्चर फार्मूला शोज द also bonds of the atoms. Okay, now here it shows that how the atoms are attached. So it shows that carbon is attached to two hydrogen atoms. This carbon also attached to two hydrogen atoms. Okay, this shows the number atoms, how the atoms are attached to each other, and this shows the even the bonds. Okay, means it is also called displayed formula. Okay, it explains much more, okay, in detail as compared to structure formula. That's why it is called full structure formula. Okay, सो यू कैन सी प्रोपीन में देख लें तो C3H6 है. ठीक है, आगे इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला अब देख लें. उसके बाद मैंने फुल स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा था. ठीक है, सो यू कैन सी ब्यूटीन 4 कार्बन है. ठीक है, तो इसमें सॉरी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट देयर हैज़ टू बी वन, yes, like this we have to decrease one carbon, and here it has to be CH2 instead of CH3. Okay, CH2, CH2 and CH3. Okay, because here has to be a double bond, so it's unlike alkanes, it has less number of hydrogen atoms. That's its formula CnH2n. डबल तादाद है कार्बन से एज कम्पेयर टू कार्बन. ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं ना अल्केन्स में तो उसमें +2 भी आ जाता है, डबल से 2 ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे हैव कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. ओके, तो डबल बॉन्ड को अल्कीन्स कहते हैं, ट्रिपल अल्काइंस कहते हैं. बट वी डोंट हैव टू स्टडी अल्काइंस इन आवर सिलेबस, वी स्टडी ओनली अल्कीन्स एंड अल्केन्स. ओके, so but they are called unsaturated hydrocarbons, means they are not saturated, they are not satisfied, they have to still make this. when they will get satisfied, जब इनके कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है, तब ये satisfied होंगे. then at that time they will be called saturated. ठीक है, now they are not satisfied. So we were studying the isomerism. So let's begin. Isomerism is the compound with the same molecular formula but different structure formula. Okay, so as alkanes show isomerism in the same way, alkenes also show the same different structure formula. Okay, so like we have butene. Buta shows 4 carbons, C4, and ene shows this is alkene. So when it is alkene, so we will go to its general formula CnH2n. So this formula will help us to write its name. ठीक है, Cn यानी कि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे, 2n, 2 4s are 8. ओके, तो ब्यूटेन. सो देयर आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. ओके, एक तो स्ट्रेट चेन है 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड बना दें. ठीक है, और इसमें भी 1 2 डबल बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड यहाँ पे. अब इसकी जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड कर लें. ठीक है, आई थिंक वी शुड मेक इट्स ओपन स्ट्रक्चर fully, or we can simply write like this: CH3
टू बॉन्ड्स, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, 1 and 2 3 bonds and one more CH, 2 bonds, and here it will be CH2 like this, ठीक है। तो ये आपके पास है ब्यूटीन, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एन ब्यूटीन, ये नॉर्मल है क्योंकि ये हमारे पास क्या स्ट्रेट है। तो अब यहाँ पे इसकी वजह से सेटिफाई करते हैं, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, 1 बॉन्ड इज देयर विद 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड हेयर, 1 हेयर, 3 एंड 1 डाउन 4, तो इसके साथ हाइड्रोजन ही आएगी, ठीक है। इसके 1 बॉन्ड है तो म्यूजिक 3 आ जाएंगे, इसके 2 बॉन्ड है तो म्यूजिक 2 आ जाएंगे, CH2, ठीक है। सो व्हाट वी कॉल इट, मीथाइल प्रोपीन, because this is methyl and this is the propene, okay, this is the propene and this is methyl, okay. So this is the chain methyl and then the parent chain, that is propene, okay. So in this way we can name them, but you can see that they have the same molecular formula but different structure formula। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जैसे कि हमने अल्केन्स का अंदर स्टडी किया था, तो इसी तरह इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ओके। तो हम जरा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की तरफ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, चलें हम ज़रा देख लेते हैं ना इनका। देखें जो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ना, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैं वो ज़रा डिस्कस कर देता हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है। जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी वी स्टार्ट फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, boiling point, okay. Density, viscosity, flammability, I don't know why I'm forgetting spellings today, flammability यानी कि फ्लेम हासिल करने की सलाहियत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ऑल ऑफ दिस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द साइज। काइनेटिक एनर्जी, जितना साइज बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मींस दे विल बी मूविंग स्लोली, ठीक है। IMF की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितना साइज बड़ा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगी, जितना साइज कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जो फोर्स स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, ठीक है, व्हेन द साइज इज हायर सो दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर ड्यू टू द हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और फिर इनकी विस्कासिटी, बिकॉज द हायर साइज्ड ड्यू टू हायर साइज्ड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल फ्लो स्लोली, ओके। तो रेजिस्टेंस और यू कैन से द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अच्छा, उसके बाद फ्लेमेबिलिटी, इनको फ्लेमेबिलिटी ये डायरेक्टली नहीं होगी, सॉरी, हाँ ये डायरेक्टली नहीं होगी। फ्लेमेबिलिटी जो होती है इन्वर्सली होती है, जितना साइज़ बड़ा होगा इतना उसका फ्लेम कैच करने की जो सलाहियत है वो कम होगी। फ्लेमेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ग्रेटर द साइज लेस द फ्लेमेबिलिटी। जैसे कि हमने अल्केन्स में पढ़ा था ना कि लुब्रिकेंट आयल्स हैं तो उसको आहिस्ता आग लगती है, उसका फ्लेम आराम से बनता है, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स हम देखें तो हमारे पास मीथेन है तो उसको जल्दी लग जाती है, ठीक है, इन द यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ओके, इट कैचेस द फायर एंड मेक्स द फ्लेम, ओके। तो अब इसके ना कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जब भी आ जाए तो उसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हाउ डू दे रिएक्ट, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेसिकली ना दीज आर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक है, रिएक्टिव देन अल्केन्स, ठीक है। अच्छा, अब ना ये कुछ रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो कंबशन,
कंबशन मीन बर्निंग इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अल्कीन्स burn in oxygen to form carbon dioxide and water with heat, इसको कंबशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंबशन। चलो जी, मैं यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ओके, यू मस्ट नो इट। इसमें सिर्फ वर्ड्स लिखते हैं, ठीक, वी डोंट नीड टू बैलेंस इट, जस्ट शोइंग दैट अल्कीन प्लस ऑक्सीजन react to form carbon dioxide plus water plus heat. Actually, heat doesn't have any formula, but this is the purpose for the combustion of the alkenes. Okay. तो ज़रा हम देख लेते हैं, हमारे पास इथीन है, ठीक है, इथीन C2H4, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ज़रा देखते हैं बनता क्या हमारे पास। टू कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन, सो 2H2O along heat, okay, but that is a byproduct. To balance it, 2 ones are 2 ऑक्सीजन और 2 2s are 4, 4 + 2 कितना हो गया जी, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, 3 2s are 6, 2 कार्बन 2 कार्बन्स, 4 1 4s are 4, 4 हाइड्रोजन, 2 2s are 4, 3 2s are 6 ऑक्सीजन, 2 2s are 4 and 2 1 2 plus 4 6, balanced, okay, it is balanced. So all will be gases, it will be gas, it will be gas, and it will be also in the vapors form, ठीक है, वाटर जो है ना वो वेपर्स में रिलीज होता है, ओके। सो एक्चुअली कार्बन पार्टिकल्स में आल्सो प्रोड्यूस, you have to remember, may also produce। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये मोर सूटियर होता है, सूटियर मीन्स यानी कि ये काला धुआं देता है, ब्लैक स्मोक देता है, ठीक है। तो देन अल्केन्स, सूटियर देन अल्केन्स, अल्केन्स होता है ना, उसका धुआं, उसका जो स्मोक होता है वो इतना ब्लैकिश नहीं होता जितना ये होता है, बिकॉज इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इसमें कम हो जाती है तो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है कि इसका इट इज़ मोर सूटियर देन द अल्केन्स, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने इससे देखनी है एडिशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। इसे देखें ना, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन टू कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनसैचुरेटेड। कब सेटिस्फाइड होगा, कब सैचुरेटेड बनेगा, यानी कि अब एक भूखा इंसान होता है, उसको भूख लगी होती है, इज फीलिंग हंगर, सो ही विल ट्राई टू सेटिस्फाइड इज हंगर, विल ट्राई टू गेट फील्ड, ओके, टू ईट इज मैक्सिमम टू गेट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इट इज़ अनसेटिस्फाइड बिकॉज इट हैज़, यू कैन से हंगर, बिकॉज इट हैज़ 2 बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड जो है ना इसमें ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो ब्रेक डाउन होगा तो इस पर कुछ चीज़ ऐड होगी, सो बेसिकली इट इज़ रिएक्टिव। You can write that carbon to carbon double bond in the alkene are reactive, okay. Alkenes are reactive due to presence of carbon to carbon double bond and show addition reactions। क्या शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अच्छा, एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द एडिशन रिएक्शन क्या, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, ये इसकी एग्जांपल है, इसकी एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द
टाइप ऑफ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ओके, इट गेन्स और combines with another सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस उसके साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सिंगल कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, टू फॉर्म अ न्यू सिंगल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड क्या होगा, सिंगल होगा, उसको बने इस कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें ना, 4 + 2 6, तो ये एडिशन तब हम कह रहे हैं ना कि when this is alkene and it is any other substance, when both of them react so a new compound, single compound is formed, ठीक है, तो जब दो चीज़ें मिली और एक नई चीज़ बनी, only one more thing is formed, okay, because of combination of these two things, so it is called addition reaction। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, दे कैन फॉर्म द carbon to carbon double bond, means we have carbon double bond it has, okay, so plus X and Y, this is a new, this is unsaturated hydrocarbon which has carbon to carbon double bond, and this is a, you can say this is any new substance when they combine, so double bond is broken down, it converts into the single, these are the same bonds which were there, and here X is added and here Y is added। तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बन जाता है, सेचुरेटेड। वी कैन राइट ओवर हियर दिस इज अनसेचुरेटेड, यानी अनसेचुरेटेड मतलब है कि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन क्या बॉन्ड था, डबल था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बिकम्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आई एम यूजिंग हियर सम shortcuts but you don't have to use, okay, you have to write proper spellings। अच्छा, there are some reactions of alkenes which are based on the addition reactions of alkenes, okay, you can simply say addition reactions of alkene, I am writing carbon to carbon double bond, ठीक है जी, ये alkene वो is carbon carbon double bond। First is addition of hydrogen, we call it hydrogenation, ठीक है, हाइड्रोजनेशन एक रिएक्शन होता है। दूसरा एडिशन ऑफ ब्रोमीन, वी कॉल इट ब्रोमिनेशन। थर्ड इज एडिशन ऑफ स्टीम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, यानी पानी का एंटर होना, एडिशन होना। फोर्थ इज पोलीमराइजेशन, और सिंपली वी कॉल इट एडिशनल पोलीमराइजेशन, एडिशन पोलीमराइजेशन, because it is polymerization due to addition of a molecule, okay, of the same type of molecules, because we have to study some types of polymerization in the next chapter, so that's why it's mentioned over here that which type of polymerization it is, addition, ये addition polymerization है। तो चलें एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। Simply addition of molecular hydrogen, molecular hydrogen. What is molecular hydrogen? Means H2. Okay, so let me tell you that there are some conditions which are required for doing this reaction. Okay, means we need to have catalyst, that is catalyst is nickel, okay, nickel, and the temperature is kept 200 centigrade, okay. So for example we have alkene plus hydrogen, so what is formed? Alkane,
Okay, so it is take place at 200 centigrade and in the presence of nickel. So let me tell you, C2H4, this is ethene, plus there is H2, this is hydrogen. Okay, so what happens? C2H6 will be formed. Okay, so this is gas, this is also gas, and it is also gas. So let me tell you, it's a full open structures. ठीक है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है साथ इसके ना। ठीक है, CH2 हो गया और ये भी CH2 हो गया, तो टोटल आप देखें तो C2H4 है। ठीक है, डबल बॉन्ड ने ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी, एक इसमें ऐड हो जाएगी और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वी विल सी दैट व्हाट हैपेंस ओवर हियर at 200 centigrade and in the presence of nickel, what happens over here? You have two carbons bonded to each other with a single bond, having two already hydrogen and one more hydrogen is added. ठीक है, तो each carbon contains three hydrogens, so it becomes C2H6. Okay, is it clear? So it takes place at 200 centigrade and in the presence of nickel. These are the conditions, you must know it. Okay. अच्छा, अब देखें ना इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या होता है. व्हाट इज़ द यूज़, why the hydrogenation is useful. Okay, how the hydrogenation can be used industrially, okay, or commercially in the industries. तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कमर्शियली इसको किस तरह यूज़ किया जाता है? टू प्रिपेयर और टू मेक, टू मैन्युफैक्चर मार्गरीन, इसको उर्दू में कहते हैं डालडा घी। मीन्स घी, डालडा तो एक कंपनी का नाम है तो घी बनाने के लिए। ठीक है, दैट इज सेमी सॉलिड। ठीक है, पराठों बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इट्स ओन बेनिफिट। ओके, तो क्या होता है हमारे पास वेजिटेबल जो ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, vegetable oil is added with a hydrogen in the presence of same catalyst and the temperature, so margarine is formed. ठीक है, this is oil, this is actually unsaturated. ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, and this becomes saturated. ओके, सो इस तरह हम मार्गरीन को तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो नेक्स्ट सेकंड एडिशन रिएक्शन विच वी हैव टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ब्रोमीन। Br2 or simply call it bromination. अच्छा, होता क्या है हमारे पास ना, एक सोल्यूशन है, कौन सा जी, रेडिश ब्राउन है। ठीक है, दिस इज सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन Br2। ठीक है, रेडिश ब्राउन है। इसमें ना इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अल्कीन डालते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली। ठीक है, तो अल्कीन जब डालते हैं ना, तो अल्कीन के साथ रिएक्शन करके इसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन, वो डीक्लोराइज हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर डीक्लोराइजेशन। ओके, सो देखिए, दिस इज कॉल्ड, इट शोज दैट अल्कीन हैज़ बीन डीक्लोराइज्ड। और अगर हमारे पास इसका रेडिश ब्राउन कलर डीक्लोराइज नहीं होता नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसका मतलब ये अनसेचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम अगर इफ़ यू वांट टू सी वेदर दिस कंपाउंड विच वी हैव इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, to check the saturation of any compound, we add it into the bromine, which has a reddish brown color. So if its color decolorizes, it is confirmed that this is unsaturated, and if its color does not decolorize, so it makes it clear and get it verified that this is saturated. क्योंकि ब्रोमीन जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सैचुरेटेड, यानी कि जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं
ethene, okay, uh, plus second thing is bromine, okay. So this forms 1 2 dibromo ईथेन, ओके। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाता है ना, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ईथीन नहीं बल्कि ईथेन बन जाएगा। तो लेट मी टेल यू, C2H4 ये ईथीन है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, Br2 है, ठीक है, दिस इज एक्वस, और इसका रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है। और आगे आपके पास क्या बनेगा, C2H4Br2, ठीक है। तो ये आपके पास एक्वस बन जाता है, ये लिक्विड बन जाता है, सॉरी बिकम्स लिक्विड, दिस इज गैस, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको फुल ओपन स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दिस आल्सो हाइड्रोजन, वन मोर हाइड्रोजन, इट हैज़ कैपेसिटी टू ऐड एनी मॉलिक्यूल इनटू इट, ठीक है। तो ये ब्रोमीन है, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक इस पे ऐड हो जाएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर, वी हैव दिस कार्बन विद दिस कार्बन, bromine over here, the same with bromine over here, this is hydrogen, this is what we call hydrogen, which are already present on them, okay, hydrogen. So it is called 1 2 dibromo, दो ब्रोमो है ना, और ethane because it has single bond, okay. So I'm not writing its name because it's already written over here, you can see over here, ठीक है। तो इसमें देखें क्या ये पूरा लागू हो रहा है कि नहीं, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो है, 1 2, या इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इट डजंट मेक डिफरेंस, ओके। 1 2 डाइब्रोमो ethane, ethane means it has become alkane, from unsaturated to it has become saturated. एडिशन रिएक्शन जब भी कोई होता है तो हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन जाता है, ठीक है। इथीन से इथेन बन जाता है, अल्कीन से अल्केन बन जाता है, ओके। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द अनसेचुरेशन ऑफ एनी कंपाउंड। अगर अनसेचुरेटेड होगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और इसको डीकलराइज, विल डीकलराइज इट। हम ऐड करें, देखना चाहते हैं अनसेचुरेटेड है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। अगर हुआ सेचुरेटेड, ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, वेदर इज सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, ठीक है, उसको ब्रोमीन के अंदर हम डालेंगे तो नो कलर चेंज एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, ओके, स्पेसिफिक, ठीक है। हाँ, यूवी की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट यूवी रेस की या सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे पास रिएक्शन शो करता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, बट दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अनसेचुरेटेड के साथ ब्रोमीन डीकलराइज हो जाती है, इट कन्फर्म्स दैट दिस इज अनसेचुरेटेड, और सेचुरेटेड के साथ बिल्कुल डीकलराइज नहीं होती और there is no color change, so it confirms that this is the saturated, okay. So to check the saturation of any compound, we can use the bromine, okay, because it has reddish brown color which gets decolorized with unsaturated, unlike saturated, okay. Third, that is addition reaction, addition of water, इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, हाइड्रेशन। देखिए सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास ईथीन है, ठीक है, प्लस उसके साथ वाटर करते हैं, ठीक है, इस पर, या सॉरी एक्चुअली इट इज़ नॉट एडेड एज वाटर, ठीक है। वाटर जब आता है तो इसका मतलब लिक्विड नहीं, ये स्टीम होती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर होता है तो ये भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है। तो ये हमारे पास 300 सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है, 100 पे तो स्टीम बन जाते हैं, ठीक है, 300 पे होता है, 60 ATM पे होता है, और H3PO4 फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, ये बन जाता है एथेनॉल, यानी कि शराब, जिसके अंदर एथेनॉल जो होता है ना, ये शराब बनाने के इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ज़रा इसको मैं बताता हूँ कैसे, C2H4 + H2O, ओके,
This is also gaseous. This is also gaseous. With the same condition means 300 centigrade. ठीक है 60 atm. और ये H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, ये कैटलिस्ट है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है. तो हमारे पास क्या बनता है C2H5OH एथेनॉल. ठीक है. और हमारे पास ये क्या है, ये लिक्विड है. तो अब ज़रा देखते हैं इसके ओपन स्ट्रक्चर. लेट मी ड्रॉ इट्स ओपन स्ट्रक्चर. डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 plus H and OH. This become H2O. Okay, it's break down from here and it breaks over here. तो क्या होगा हमारे पास 300 सेंटीग्रेड 60 atm. ओके H3PO4. हमारे पास CH हो गया, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया. ठीक है, बिकॉज दिस इज एडेड टू दिस कार्बन. ओके, तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा. सिंगल ये H हो गया, इसके साथ पहले H एक मौजूद है और एक OH. चलें इसको OH बना लेते हैं, इसको नीचे H कर लेते हैं. तो बेसिकली CH3 एंड CH2 बिकम C2H5 एंड OH. ओके, दिस इज एथेनॉल. ठीक है, इसको नीचे आप ऐड कर लें, डजंट मेक डिफरेंस. ओके, इट्स फॉर योर ओन ईज. ओके, एज यू थिंक बेटर टू राइट. ओके, चौथा जो हम रिएक्शन है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को और बैग्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ज़रा देखें. पॉली मीन्स मैनी, मर्ज मीन्स स्ट्रक्चर, जेशन. ठीक है, मराइज. ठीक है, जेशन का मतलब है एडिशन. उनका बहुत सारे स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कंबाइन टू फॉर्म ए, you can say, large molecule, long molecule. Okay, a process in which many small molecules, छोटे छोटे जो molecules होते हैं, combine chemically. Definitely we are studying the chemical reactions. Combine to form long molecule, not molecules, because many combine to form a molecule. Okay, it's called addition polymerization. अच्छा, इसके फॉर एग्जांपल है, ये ज़रा हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इथीन है. क्या चीज़ है? इथीन है. और ये ना हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे और साथ कैटलिस्ट भी हो, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये बन जाता है पॉलीइथीन. मींस इट इज़ मैनी नंबर्स. ओके, पॉलीइथीन बन जाती है. लाइक दिस मीन्स इफ वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ n नंबर ऑफ इथीन, यानी कि मैनी है. तो हमारे पास हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और साथ ही कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या बन जाती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. और इसका बॉन्ड आगे और पीछे शो करेंगे क्योंकि ये आपस में इस तरह लिंक्ड हो जाती है और n यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल एक ही बनेगा विद द n नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स. मींस इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज लॉन्ग. ओके, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन. ठीक है, इसको पॉलीमर भी कहते हैं. ठीक है, पॉलीमर बनाना यानी कि पॉलीमर जिसका इसको कहते हैं मोनोमर. इसको हम एक को कहेंगे मोनोमर. मोनो मीन्स वन. ठीक है, और मर का मतलब स्ट्रक्चर, और पॉली मीन मैनी, और मर का मतलब स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारी स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलके एक बड़ी स्ट्रक्चर बने. ठीक है, दीज आर मोनोमर्स, दीज आर मल्टीपल इन नंबर्स एंड दिस इज ओनली सिंगल वन, पॉलीमर. तो पॉलीमर बनाने के अमल को कहते हैं पॉलीमराइजेशन. अच्छा, इसकी पॉलीथीन की जरा, ये पॉलीथीन है, ये इथीन है और ये पॉलीथीन है. ठीक है, दिस इज अ इथीन पॉलीथीन. लेट मी मेक इट क्लियर. H, also H, and number of H. Okay, वही चीज़ हाई टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में
ठीक है। और हमारे पास क्या बनाता है, सी सिंगल बॉन्ड सी एच, कोई भी एच, लोअर वही सी एच और हेयर एच, और ये क्या बन गया जी, एन। ओके, इसको कहते हैं ईथीन। क्योंकि यहाँ इंडिविजुअली पाई जाती है ना, नंबर तो ज़्यादा है लेकिन इंडिविजुअल है, एक ही यूनिट है, लेकिन यहाँ सारे मिलकर एक बना रही हैं तो इसको कहते हैं पॉली ईथीन। It's a very importance. There's much more importance industrially because it is to make, it used to make शॉपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, शॉपिंग बैग के लिए जो, ठीक है, शॉपिंग बैग के लिए जो जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं शॉपिंग बैग, ठीक है। तो छोटे शॉपर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि इससे बना। उसके अलावा जो एक बरसाती होती है, यानी कि बारिश के मौसम में ऊपर पहनने के लिए ना, रेन कोट, ओके, इट इज़ आल्सो मेड ऑफ पॉलीथीन। ओके, तो देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्लास्टिक है वो भी ऑर्गेनिक है, बट दैट इज सिंथेटिक। ओके, प्लास्टिक इज सिंथेटिक, दैट इज organic. Okay, is it clear? So we'll study some other things in the next lesson. To get the satisfactory results, you may contact on this contact number, and here we provide the O levels chemistry tuition for all types of Cambridge boards. So please don't hesitate and contact to study in Hindi, Urdu, and English languages.